Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome to my YouTube channel, Manu Issue ACC Classes. So in today's video, we are going to do last question from section C of cost of capital from Copland. So question name is JD Moore Company. So let's first read out the requirements of this question. The requirement of the question is first, using the capital model, calculate the company's current cost of equity as well as further discuss the cost of equity suitable for the new venture. Referring to your calculation above, comment briefly on the view of the commercial director. Discuss three problems company may be facing as a result of its current high level of gearing. In respect of both equity and debt, discuss the fixed relationship and how it affects the company its financial cost. So now coming to the question. JD Moore Company is a listed company in the house construction industry. Over the past 5 years, the results have been disappointing, and as a result, the share price has been fallen from a high of 3.50 per share 5 years ago to only 1.05 per share today. This deterioration in the performance and the share price has been accompanied by an increase in financial gearing to a high level. Means company financial gearing is very high, and company capital structure is as follow. It's given share capital, retained earnings, irredeemable bank loans. So now JD company loan notes are now quoted at 65 per loan note, and both the loan notes and the bank loans are secured. JD company equity beta is 2.3. Okay, so to improve the performance of JD company is considering the construction of the commercial property such as the office block and the industrial complex. This is a new activity of JD company and is expected that risks involved will be different from its current activity. The financial director has proposed that project-specific discount rates should be used to appraise the new venture, but the commercial director does not believe this is necessary. This new company recently undertakes commercial construction projects similar to those considered by JD Moore Company. The BCP has an equity beta of 1.25. The BCP has 100 million of ordinary shares in issue, currently quoted at 2.60 for dollar nominal value, and the company has also 110 million of nominal issue, currently quoted at 96 per nominal value. Both companies pay tax at 20% and the risk-free return and expected return on the market percentage is 10%. So सबसे पहले before going calculation, the question हम लोग को पूछ रहा है to capital model use करके we need to find out the current cost of equity and the project specific cost of equity. Now आपको cost of equity calculate करने का दो मेथड है. One is the capital model, एक dividend model वाला है. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, कुछ बोला नहीं कौन सा मेथड यूज करने के लिए, आपको बोल दिया है just use capital because ये थोड़ा more accurate result देता है as compared to the CVM वाला. Okay, so first our calculation is we need to calculate the current cost of equity, right? Okay, so current cost of equity using the capital. The capital का formula क्या है हमारा? K equal to RF plus beta into RM minus RF. ठीक है? K फाइंड आउट करना है. RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न. रिस्क फ्री रिटर्न ये होता है जैसे कि आपको इतना एश्योरिटी इतना मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट का सिक्योरिटी या फिर ट्रेजरी बिल होता है, गेटवे सिक्योरिटी, ये सब गवर्नमेंट की वो है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिटर्न कुछ होता है, इसको सिक्योर कहा जाता है. ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है. क्वेश्चन बिटा. अब बिटा यहाँ पे कंपनी का करेंट जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जेडी मोर का अपना बिटा भी दिया हुआ है, विच इज हियर गिवन द क्वेश्चन. जेडी मोर कंपनी इक्विटी बिटा इज 2.3. ये 2.3 यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, 2.3. नाउ आर इट्स ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन.
क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड मार्केट ओवरऑल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ये रहा 10%, ये 10%। ये क्वाइट फॉर्मूला में से कुछ दिमाग नहीं लगाना, हाथ पीछे नहीं करना है हमको। K इक्वल टू हो जाएगा जस्ट टेक दिस फॉर्मूला प्लस बीटा इनटू 6%, so it's 17.8, right? अब क्वेश्चन दूसरा क्या बोला हुआ है हम लोग को, क्वेश्चन टोल्ड टू कैलकुलेट अपना क्वेश्चन क्या रहा है, आई मीन कि अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब ये बताती हूँ, जैसे अब लाइक कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन द समथिंग न्यू एक्टिविटी, एज इन आवर केस द जेडी मोर कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन द न्यू एक्टिविटी विच इज अ कंस्ट्रक्शन, और जहाँ पे आपका बिजनेस रिस्क इन द इन्वेस्टिंग कंपनी एंड इन दिस कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट, दोनों का डिफरेंट है। इन दैट केस कंपनी का जो अपना इक्विटी बिटा होता है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ और चीज लाइक बिजनेस रिस्क आपको पता है ना क्या होता है, लाइक वो पर्टिकुलर इन नेचर ऑफ इंडस्ट्री की वजह से रिस्क अराइज होती है, तो वैसे डिफरेंट एक्टिविटी अराइज करें तो दोनों का नेचर अलग अलग है, दैट्स व्हाई दोनों का ऑपरेटिंग रिस्क अलग अलग होगा। तो हम लोग इक्विटी बिटा जो आप रेडीमोड कंपनी का है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंगल इंडस्ट्री कोई है अगर जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी रेडीमोड कंपनी है, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन द यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कंस्ट्रक्शन एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज वाले में जो भी, तो पहले मैं क्या करूंगी, इस इंडस्ट्री या इस कंपनी में जो भी लाइक प्रॉक्सी कंपनी है उसको फाइंड आउट करेंगी, तो इसका प्रॉक्सी बीटा हम लोग यूज करेंगे। उसका प्रॉक्सी बीटा में फाइनेंशियल रिस्क प्लस ऑपरेटिंग रिस्क दोनों होगा। मेरे जैसे इक्विटी बीटा है यहाँ पे 2.3, इसमें फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रिस्क दोनों है, तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क इसका जिसमें इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल रिस्क सेम थोड़ी होगा, नहीं होगा, सेम अलग अलग होगा। तो जस्ट हम लोग को ऑपरेटिंग रिस्क वहाँ से वो प्रॉक्सी बीटा जो प्रॉक्सी कंपनी का यूज करके वी विल अनगियर टू कैलकुलेट एसेट बीटा। एसेट बीटा मतलब सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क सॉरी ऑपरेटिंग रिस्क इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो हम लोग बीटा कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर अपना हम लोग क्या बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क डाल के हम लोग इक्विटी बीटा कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ बीटा। उसको फिर क्या नाम उसके फॉर्मूला डाल के हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब शायद वॉइस ऑडिबल है, ओके तो अभी मैं कैलकुलेशन समझाती हूँ तो बेटर वे में समझ में आएगा। नाउ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब इसके लिए पहले हम लोग को चाहिए, पहले हम लोग प्रॉक्सी कंपनी है उसका प्रॉक्सी बिट डालेंगे, तो ये हम लोग प्रॉक्सी कंपनी का डेटा लेते हैं, प्रॉक्सी कंपनी का डेटा। सो पहले बीई जो जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में, उसका बिटर दिया हुआ आई थिंक क्वेश्चन में, यहाँ पे देखना आप, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जेडी मोर कंपनीज कंसिडरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल प्रॉपर्टी सच एज ऑफिस ब्लॉक्स एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दिस इज ए न्यू एक्टिविटी फॉर जेडी मोर कंपनी, it is expected that the risks involved will be different from its current activity। यहाँ पे बोल दिया है ना कि इसका रिस्क डिफरेंट है करंट एक्टिविटी से, तो इसलिए हम लोग को ये प्रॉक्सी कंपनी का प्रॉक्सी बिटा यूज करना पड़ेगा। And the financial director had proposed that project specific discount rate should be used to appraise the new venture, but the commercial director doesn't believe this is necessary। अब एक कमर्शियल डायरेक्टर तो रॉन्ग है,
अब मैंने बता दिया ना क्यों हम लोग अपना खुद कंपनी का ऑन बीटा, जैसे जेडी मोर कंपनी का खुद का बीटा 2.3 वो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट का बिजनेस रिस्क डिफरेंट है। अगर डिफरेंट बिजनेस रिस्क है, इन दैट केस वी कांट यूज द इन्वेस्टिंग कंपनी इक्विटी बीटा टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में, उसका प्रॉक्सी बीटा लेंगे। जैसे यहाँ पे WCP है, WCP undertakes commercial construction projects similar to those considered by JD Moore Company. WCP has an equity beta of 1.25. क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.25. WCP has 100 million of ordinary shares. ये हो जाएगा आपका VE, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। अभी कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ देख लो अब एक बार। WCP के पास 100 मिलियन है ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। इसका नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टू गेट द नंबर ऑफ शेयर्स, and currently quoted at 2.60. Market value is 2.60 and nominal value with दिया है which is 1 into market value which is 2.60. Now VD ये market value of the loan note। अब लोन नोट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये किसका है? सब प्रॉक्सी कंपनी का ले रहे हैं, अपना नहीं, ठीक है। तो प्रॉक्सी कंपनी का लोन नोट इज 110 मिलियन। इसको डिवाइड करेंगे 100, क्योंकि हमारे नॉमिनल बॉन्ड का लोन नोट का नॉमिनल वैल्यू होता है 100। वैसे भी क्वेश्चन में बोल दिया है करंटली कोटेड है 96 पर 100 नॉमिनल वैल्यू, तो इनटू 96 पे कोटेड है विच इज द मार्केट वैल्यू। तो ये हमारा आ जाएगा VD। नाउ 1 माइनस टी मतलब हमारा टैक्स के क्या हो जाएगा, तो हमारा बोला हुआ है दोनों कंपनी का टैक्स रेट इज 20% क्वेश्चन, यू कैन सी। सो 1 माइनस 0.20 ये आ जाएगा 0.8। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, BA फाइंड करना है। BA मतलब आपका एसेट बिटा। ये एसेट बिटा से फाइनेंशियल रिस्क इनकॉर्पोरेट करती है, तो सॉरी आई मीन ऑपरेटिंग रिस्क इनकॉर्पोरेट करती है, जो विच वी रिक्वायर्ड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे हम लोग BE इनटू करेंगे VE, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर डिवाइड करेंगे VE प्लस VD इनटू 0.8, ये आ जाएगा 0.94। ये तो हम लोग ने क्या किया, अनगियर। नाउ हम लोग को रीगियर करना पड़ेगा, रीगियर, ठीक है। अब रीगियर के लिए हम लोग बिट्टा एसेट निकाल लिया हम लोग ने, ठीक है। अब ये जो है ना खुद का जेडी मोर कंपनी का डेटा रखेंगे। अब ये जो VE वाला था ना, VE वगैरह या फिर VD और या फिर 1 माइनस टी, ये हम लोग ये जो इन्वेस्टिंग कंपनी इन आवर केस जेडी मोर को, तो उसका हम लोग डालेंगे। तो VE कितना दिया हुआ है, ये हम लोग कहाँ से देखेंगे, वी विल जस्ट गो अप अबव, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो VE मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल या इक्विटी, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, कभी कभी क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू पर ध्यान देना है, ठीक है। तो 40 डिवाइड बाई 0.5 नंबर ऑफ शेयर्स एंड विच इज कोडेड एट, क्वेश्चन में यहाँ बोला हुआ है कि शेयर प्राइस फॉल हो गया एंड टुडे शेयर प्राइस इज 1.05। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1.05 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। नाउ अब हम लोग निकालेंगे लोन नोट का। लोन नोट कितना है हमारे पास, 250, ठीक है। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 100 से, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 100 ही होता है, एंड मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट रेट इज 65, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा हमारा लोन नोट के लिए मार्केट वैल्यू प्लस बैंक लोन विच इज 20, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो 182.5। ठीक है, 1 माइनस टी मतलब दोनों कंपनी का सेम है टैक्स रेट, तो 21 माइनस 20% करो तो 80 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे BE अगेन
ठीक है। तो ये अब इसका फॉर्मूला वही सेम ऊपर का ही होगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं कहीं लिखा हुआ था, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ये है ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है बीई। बीए कितना निकाला हम लोग ने 0.94। अब इनटू करेंगे वीई। वी कितना है हमारा अपना जेडी मोर कंपनी का 84 प्लस वी डी इंटू 80 percentage. Now bracket will be closed, divided by VE 2.58 आया। ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, कैपम का फॉर्मूला यूज करके के ई फाइंड आउट करना है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, बाकी का वैल्यू ऊपर मैंने लिखा हुआ, सिर्फ बीटा इक्विटी चेंज हो जाएगी। तो नाउ के ई इक्वल टू आर एफ विच इज इन आवर केस 4% प्लस बीटा हम लोग ने निकाला, आर एम 10% दिया हुआ है, आर एफ 4% है अगेन, तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो 19%, ये पॉइंट में आ रहा होगा, राउंड ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, तो 90.50%। ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या कहता है, रिफरिंग टू योर कैलकुलेशन अबव कमेंटली ब्रीफ ऑन द व्यू ऑफ द कमर्शियल डायरेक्टर। नाउ जो कि कमर्शियल डायरेक्टर बोल रहे थे ना कि लाइक विच इज इनकरेक्ट, विच इज इनफिजिबल टू यूज लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे the financial director has proposed that this project specific discount rate should be used to appraise a new venture, but the commercial director does not believe this is necessary. तो कमर्शियल डायरेक्टर इसका व्यू रखना है, इसके मतलब इसके व्यू पे हम लोग को कमेंट करना है। कमर्शियल डायरेक्टर तो टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अब भी ये देख लो, जैसे कि हमारा करंट इक्विटी कितना था 17 पॉइंट समथिंग एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक 19.50। इफ कमर्शियल डायरेक्टर ये वाला इक्विटी विच मीन्स करंट इक्विटी यूज करके इफ दे डिस्काउंट द प्रोजेक्ट, इन दैट केस क्या हो सकती थी, रॉन्ग डिसीजन कैन बी टेकन। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन द करेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग ये करंट इक्विटी लेकर प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करते तो इस टाइम रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है। ये चीज लिखना पड़ेगा आपको। और दूसरा ये लिखना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट जो हम लोग ले रहे हैं जिसपे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की है, इस पे हाई रिस्क है, सो दैट कि के ही मतलब क्या होता है, रिटर्न टू शेयर होल्डर ना, तो वो लोग हाई डिमांड कर सकते हैं, आई मीन करेंगे। कहाँ गया, अच्छा ये, हाँ। तो देखो ये अभी कई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ रहा है ना, तो वो लोग में भी डिमांड कर सकते हैं ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। ये लिखना पड़ेगा। Now discuss three problems JD Moore company may be facing as a result of its high current level of gearing. अब हाई गियरिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। फर्स्ट इज बैंकक्रप्सी। बैंकक्रप्सी कैसे, द हायर गियरिंग मींस आपका द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इज हायर देन इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, सो हायर द गियरिंग विल बी हायर विद द फाइनेंशियल रिस्क। अब ये कैसे होगा, so because company had to pay more interest on those debt which जो लिया है, डेब्ट इंक्रीज किया, उस पे तो मोर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ज्यादा पे करें तो उससे क्या होगा, वी डू हैव ए लेस प्रॉफिट लेफ्ट टू गेट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा कि लाइक इफ कंपनी
प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है बट डोंट हैव ए सफिशिएंट कैश, तो या फिर प्रॉफिट सपोर्टेड बाय कैश, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इंटरेस्ट तो कैश में पे करना होता है ना. सो इन दैट केस कंपनी में लेती है बैंकक्रप्टेसी. ठीक है. दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एजेंसी कॉस्ट. एजेंसी कॉस्ट मीन्स इन ऑर्डर टू सिक्योर द इन्वेस्टमेंट by the debt holder, like lender या debenture holder, they may impose a certain restrictive condition uh, to constrain the manager freedom action. वो कभी कभी लाइक अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सिक्योर करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट का जो भी एक्शन होता है फ्री मूव होता है उस पर रोक लग जाती है. तो कैसा वो लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, ऑन द लेवल ऑफ डिविडेंड कितना पे करना नहीं पेना वो डिसाइड करेंगे. on the level of additional debt which can be arise, जो हम लोग additional debt arise कर सकते हैं और उस पर वो भी पाबंदी लगा देंगे कि नहीं इतना नहीं करना है ऐसे करके. या फिर कोई भी नॉन करेंट एसेट विच इज यूज एज ए कोलेट्रल उसको सेल करने से पहले उनका कंसेंट लेना जरूरी है, किसका, डेप्ट होल्डर का, सबका, डिवेंचर होल्डर का. सो ये एजेंसी कॉस्ट बियर कर देना पड़ सकता है. फिर उसके बाद टैक्स एग्जॉशन. ये मतलब कि कंपनी डेप्ट तो इंक्रीज की, आई मीन गेयरिंग टू इंक्रीज की, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ बट इंटरेस्ट पे तो टैक्स रिलीफ मिलता है. तो कंपनी डोंट हैव ए सफिशिएंट प्रॉफिट टू गेट दोज टैक्स रिलीफ. मतलब यहाँ पे आपका KD 1 - 3 जो कर रहे हैं ना विच इज इक्वल टू KD, सिंपली KD. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका डेप्ट होगा विच विल बी नो मोर चीपर. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो राइज होगा ही होगा जो कि आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो नाउ यू डोंट हैव ए चीपर डेप्ट जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज है. एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइज मतलब आपका वैक अब फॉल नहीं होगा. ठीक है. तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो टैक्स एग्जॉप्शन में. और क्या कर सकते हो, लाइक कंपनी का लाइक ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाइक रिस्ट्रिक्शन डाल देती है कि एडिशनल एबिलिटी टू बोरो कंपनी का. तो ये भी लिख सकते हो. ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन द रेस्पेक्ट ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेब्ट डिस्कस द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप एंड हाउ इट अफेक्ट जेडी मोर कंपनी फाइनेंसिंग डिसीजन, सॉरी फाइनेंसिंग कॉस्ट. इसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहूंगी, जस्ट वेट. कैलकुलेट ही करना पड़ेगा लगता है. ओके मैं कर ही देती हूँ, जस्ट वेट. तो अब यहाँ पे हम लोग के पास आई मीन कंपनी जो है जेटी मोर कंपनी, उसके पास क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस है इन इस कैपिटल स्ट्रक्चर. एक तो है इसका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. ठीक है. दूसरा क्या है, इरिडीमेबल लोन नोट. फिर इसके बाद क्या है, बैंक लोन. अब इसका हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें. कॉस्ट मतलब निकाले कैसे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल निकाला ना हम लोग ने 17 पॉइंट समथिंग ये वाला. अब सिमिलरली हम लोग इरिडीमेबल लोन नोट का निकाले तो कितना परसेंट आएगा, पॉइंट 5 मिल रहा है पर डिवाइड बाई 65. ये 1 नहीं होगा, एक सेकेंड.
ठीक है। तो ये तो अब इरिडीमेबल लोन पे हम लोग टैक्स भी क्लेम करेंगे ना कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हम लोग 0.80% भी डालेंगे। ठीक है, तो 0.8 ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा कैसे करते हैं, डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू। अब बैंक लोन नोट के लिए हो जाएगा आपका, इसका इंटरेस्ट कितना है 7% इंटू 0.8। नाउ जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ये रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए जो इफेक्ट करती है फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप एक्सप्लेन क्या करती है कि डिफरेंट कॉस्ट मतलब लगेगा अगर हम लोग डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करेंगे, तो है कि नहीं। तो देख सकते हैं अगर हम लोग ऑर्डिनरी शेयर ले रहे हैं एज सोर्स ऑफ कैपिटल या सोर्स ऑफ फाइनेंस, देन हमारा कॉस्ट कितना बढ़े 7.8%, इरिडीमेबल में 8%, बैंक लोन में 5.6% हम लोग को पे करना पड़ रहा है एज ए रिटर्न। तो इसका ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि मतलब ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा क्यों है, कितना डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट क्यों है। तो अब ये इसमें ये लिखना है आपको अगर आप क्रेडिटर लिस्ट देखोगे ना, इन केस ऑफ लिक्विडिटी जो रैंक होती है, तो ऑर्डिनरी शेयर हैव ए लास्ट रैंक इन दोज क्रेडिटर लिस्ट, है ना। सबको पे करने के बाद जो भी अगर बचा हुआ पैसा है, रेसिडुअल पैसा है, तब भी ऑर्डिनरी शेयर को पे होगा, अदरवाइज नॉट, है कि नहीं। तो इट मीन्स ऑर्डिनरी शेयर विल फेस द हायर रिस्क, so higher the risk, higher will be the return demanded by the investor। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर कितना का रिस्क ले रहा है, उतना ही डिमांड करेगा रिटर्न। तो ऑर्डिनरी शेयर इसीलिए इसका इनका रिटर्न हाई है। अब तो इरिडीमेबल बैंक लोन, इरिडीमेबल लोन नोट एंड बैंक लोन दोनों तो लोन नोट ही है, बट स्टिल व्हाई दे हैव अ डिफरेंट कॉस्ट ऑफ लाइक कैपिटल कह सकते हो। ऐसा क्यों। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, इन केस ऑफ इरिडीमेबल यू डोंट नीड टू रिपे योर कैपिटल अमाउंट, यू ओनली हैव टू पे इंटरेस्ट इन द परपेचुइटी, बट वेयर इन केस ऑफ बैंक लोन यू हैव टू पे कैपिटल अमाउंट एज वेल एज ए इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होगा, एक जो होल्डर है बैंक लोन या फिर इरिडीमेबल का, बैंक लोन वाले थोड़ा लेस रिस्की हुए, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए इनका इंटरेस्ट रेट है बैंक लोन वाले से कम है, तो ये भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। ठीक है, so try it by yourself. In case of any confusion, do let me know, or you can show me your answer by given in the मेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम में, जहाँ भी आपको ठीक लगे। फेसबुक आईडी भी है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी है, ट्विटर का भी है, आप कोरा का भी है। अगर आपका हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। I mean, I will help you out कि कहाँ करेक्शन करना, but try to write it by yourself और राइटिंग स्किल बढ़ाओ, so that कि you can have a good मतलब good grip हो जाएगा आपको मतलब लिखने में एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस वीडियो में यही तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो we will do the next question, okay। So thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe and share it among your friends. It's my small request, okay। So thank you so much for watching my video.